Hello students, how are you? कैसे हैं आप? Today we are going to start conjunctions. Okay, so let's see the first definition. चलिए conjunction start करते हैं और सबसे पहले इसकी देखते हैं definition को. So what do you mean by the conjunction? Conjunctions होते हैं words which are used to connect sentences and phrases. Conjunctions वो words होते हैं जो connect करते हैं sentences को आपस में और phrases को. Like example here is given and, but, so, if, since, not only but also, neither nor, either or. Okay, so here is given exercise A. Here you have to underline the conjunction in these words. Now see what will be the answer of from let's link it. So you have to underline the conjunctions in these sentences. First, cows moo and horses neigh. So here the conjunction which join two sentences, cows moo, this is the first, and second one is horses neigh. So and is here conjunctions. तो and यहाँ पे कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है. क्लियर? सी द सेकेंड, he is slow but he is careful. ऐसे ही आपका थर्ड का so है, he was late, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है. सेकेंड सेंटेंस आपका he did not watch the film. तो ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाला कंजंक्शन है so. क्लियर? ऐसे ही फोर्थ में if है, फिफ्थ में since, सेवेंथ में neither nor, सेवेंथ में but, एट्थ में either और, नाइन्थ में after एंड टेंथ में आपका not only but also. क्लियर? नाउ कम टू द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? चलिए फटाफट से एग्जांपल्स देखते हैं. bees gather nectar and make honey. butterflies are gentle but bees sting. So the words and but join two independent clauses. आपको पता होगा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं. ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने का, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है वो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएंगे. जैसे यहाँ पे एंड और बट, ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. लेकिन बीज गैदर नेक्टर और मेक हनी ये आपके टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. देयर आर 7 सच कंजंक्शंस. इस तरह के 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं. बट है, एंड, फॉर, नॉट, यट, सो, और. चलिए लेट्स सी द एक्सरसाइज हियर. जॉइन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. राइट देम इन योर नोटबुक. She is intelligent, she is smart. तो what will be the coordinating conjunction will come here? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे and आएगा. She is intelligent and she is smart. यहाँ पे आपने फुल स्टॉप अप्लाई नहीं करना और she में s जो कैपिटल है वो and लगाकर आपने s स्मॉल में लिखना है. क्लियर? ऐसे ही आपको सेकंड में लिखना है, फुल स्टॉप नहीं आएगा. I have to clean the house and cook food. Clear? थर्ड में आपका I sat down, यहाँ से स्टार्ट होगा आंसर. I sat down for the seat was empty. Clear? फोर्थ में शीना. So in fourth, Sheena and Radha are good dancers as will come. Clear? With dancers. Because here we are talking about the two. Fifth in I did very well in the interview and cleared the written test. आपका I और as well नहीं आएगा इसमें. सिक्स्थ में राजीव. So in 6 you have to write Rajiv and his brother are very good sportsmen. Now see the next. In 7th according to the sentence but will come in a place of I. आपको I की place पे जो है but लगाना है और जो है full stop भी apply नहीं करना. Clear? I have found the map but I have failed to decipher its key so far. In 8th you have to write yet in place of I. ठीक है, आई की प्लेस से आपको येट लगाना है.
इन नाइन्थ में आपके सबसे पहले लास्ट जो दिया हुआ है, इट माइट रेन इन द इवनिंग ऑन योर वे बैक, सो डोंट फॉरगेट टू टेक द अम्ब्रेला, दिस विल बी द करेक्ट। इन 10th ऋषि एंड निखिल, एंड आएगा यहाँ पे, ऋषि एंड निखिल नॉट नो द वे टू द एयरपोर्ट। निखिल डू नॉट, डज की प्लेस पे डू नॉट विल कम, ओके। ऋषि एंड निखिल डू नॉट नो द वे टू द एयरपोर्ट। नाउ कम टू द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है, let's see the example first. We reached home after the guest had arrived. I go to the library every day because I enjoy reading. So in these sentences the conjunction after and because join a main clause and a subordinating clause. यहाँ पे आफ्टर और बिकॉज यूज हुआ है एज अ कंजंक्शन, बट किसको ज्वाइन किया हुआ है, मेन क्लोज को और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को। क्लियर। सो सच कंजंक्शंस आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस तरह के कंजंक्शन जो होते हैं, जो यूज होते हैं ज्वाइन करने के लिए मेन क्लोज को और सबऑर्डिनेट क्लोज को, उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि आफ्टर, एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, ऑल्दो, टिल, अनटिल, बिफोर, अनलेस, व्हेन, whilst, why, so that, then, that. These are all belongs to the subordinating conjunction. Now types are given here of subordinating conjunction with example like time, cause or reason, purpose, result or consequence, conditions, concession और comparison. आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है टेबल में इसमें। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसमें आपको यूज करना है, लेट्स सी द आंसर। ही वाज सो टायर्ड दैट ही फेल अस्लीप। एज भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंस भी अप्लाई कर सकते हैं सेकंड में, थर्ड में दैट विल कम, फोर्थ में सो के बाद कोमा है और देन उसके बाद दैट अप्लाई हुआ है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इन फिफ्थ यू कैन राइट एज और सिंस। सिंस भी लिख सकते हैं आप और एज भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। सिक्स्थ में सिंस, सेवन्थ में दैट, एट्थ में एज और सिंस भी आ सकता है कोई एक, नाइन्थ में बिकॉज भी लिख सकते हैं, सिंस भी और एज भी लिख सकते हैं, टेंथ में बिकॉज, सिंस या एज में से कोई एक। नाउ कम टू द कोरिलेटिव कंजंक्शन। चलिए कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में जानते हैं। ये जैसे कोरिलेटिव मीन्स टू चीज़ का पेयर यहाँ पे होता है। क्लियर। जैसे आप चलते टाइम आपके दोनों पैर साथ साथ चलते हैं, ऐसे ही कोरिलेटिव कंजंक्शन में पेयर चलते हैं। हम जो है एक वर्ड को कंजंक्शन के रूप में नहीं यूज़ कर सकते कोरिलेटिव कंजंक्शन में। ठीक है। तो जैसे आपका ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, सो दैट, नो सूनर देन, as, so, these all belongs to the correlative conjunctions, though, yet. Clear. Like example, either Rohan or Rohit must be at home. The new sofa is not only beautiful but also comfortable. Now come to the exercise. Here you have to write the correlative conjunctions according to the sentence where it will come. Okay. So neither did we not go to the park, nor we went for jogging. Clear. Second, I can either have a cake or a pastry. Third, she is not only smart but also pretty. जो मैंने कट किए हुए हैं वो आपको नहीं लिखने, उसकी प्लेस पे ऊपर वाला लिखना है जो मैंने लिखा है। द न्यू कार इज नॉट ओनली फास्ट बट ऑल्सो कंफर्टेबल। इन फिफ्थ, नो सूनर हैड वर्ड्स एस्केप्ड हिज लिप्स देन हिज फादर हाउलेड। कम टू द प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। चलिए अब प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में फर्क देखते हैं। Certain words are used as both prepositions and conjunctions, so it will very difficult for you. How can you
टेल अबाउट आइदर इट बिलोंग्स टू द प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा पहचानना कि ये वर्ड जो है प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। सो हाउ कैन यू फाइंड दिस? एज कंजंक्शन दीज वर्ड्स एक्ट एज कनेक्टिंग वर्ड्स दैट जॉइन टू क्लोजेस। ध्यान से सुनिए, कंजंक्शन में क्या होते हैं, टू क्लोजेस को ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, जो कंजंक्शन वर्ड होता है उसमें टू क्लोजेस को ज्वाइन किया जाता है। बट इन प्रेपोजिशन, अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें, आपको उसमें नाउन और नाउन फ्रेज और प्रोनाउन को जोड़ा जाता है सेंटेंस में। क्लियर? टू क्लोजेस को जोड़ा जाता है कंजंक्शन में और प्रेपोजिशन में जोड़ा जाता है नाउन, नाउन फ्रेजेस और प्रोनाउन को। एज प्रेपोजिशन दीज वर्ड्स लिंक अ नाउन, noun phrase or a pronoun to other words in a sentence. For example, she had left for the market before Kirit arrived. इसमें कंजंक्शन बिफोर आपका कंजंक्शन के रूप में है, बट सी द बिफोर ऑल्सो इन अनदर सेंटेंस, शी हैड लेफ्ट फॉर द मार्केट बिफोर नून। लेकिन यहाँ पे सेम बिफोर आपका एज अ वर्क हियर प्रेपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। Clear? Like first sentence act as a conjunction as it joins two clauses. Clear? In second, जैसे कि she had left for the market आपका main clause है और Kirit arrived subordinating clause है। Clear? Second sentence में before is your preposition as it links the verb had left to the word noon indicating the time of her leaving, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन हुआ है कि उसने लेफ्ट किया है। So before belongs to the preposition here. Now come to the next here. It will be more clear by the table from the given examples of in your book. कंजंक्शंस और प्रेपोजिशन की टेबल गिवन है आपकी बुक में, तो वी विल वर्क टिल यू रिटर्न हियर टिल परफॉर्म्ड एक्ट एज अ कंजंक्शन, ओके, एंड इन सेकेंड प्रेपोजिशन टिल भी सेम ही वर्ड आपका अदर सेंटेंस में आई विल स्टे हियर टिल सनसेट, यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। क्लियर? नाउ कम टू द एक्सरसाइज हियर, लेट्स क्रैक इट, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स एज प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। चलिए फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। इन फर्स्ट बिलोंग्स टू द कंजंक्शन, फोर जो है बिलोंग्स टू द कंजंक्शंस है, सेकेंड आफ्टर कंजंक्शन है, थर्ड आफ्टर आपका प्रेपोजिशन है, फोर्थ सेंस है, इसमें कंजंक्शन से बिलोंग किया है इसने, फिफ्थ अंटिल जो बिलोंग कर रहा है कंजंक्शन से, सिक्स्थ कंजंक्शन है, सेवंथ कंजंक्शन है, एट्थ आपका प्रेपोजिशन है और नाइन्थ कंजंक्शन है, टेंथ बिलोंग्स टू द प्रेपोजिशन, 11th आपका कंजंक्शन है, 12th कंजंक्शन है, 13 प्रेपोजिशन, 14 प्रेपोजिशन ऑल्सो एंड 15 भी प्रेपोजिशन है आपका। नाउ लेट्स परफेक्ट इट आपका हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Here we will do let's perfect it exercise in our next video, so please watch also this और इसे नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। So thank you for watching this, hope you understood very well, bye bye to all।